Okay. So hydrocarbons, alkane, hydrocarbons, carbon and hydrogen के compounds are hydrocarbons. They are classified into saturated and unsaturated. Saturated are alkenes. They can be open chain. Open chain में भी straight chain हो सकते हैं, branch chain हो सकते हैं, and they can be closed. Open and branch. Sorry, straight and branch. Straight chain and branch chain. And then we can have cyclic systems among the saturated. Then we can have unsaturated system where we can have open chain, aliphatic or acyclic. Then we can have closed chain. यहाँ पर भी we can have branch और straight chain. Closed chain हो सकता है और आखिरी हो सकता है हमारा aromatic. ठीक है. सबसे पहली कैटेगरी अल्केन्स की, saturated hydrocarbons. They are also referred as paraffins because of their lowest reactivity. Fully saturated compound, tetravalency of carbon is fulfilled with single bonds. All valency of carbon is satisfied by single bond formation. Hence, they are relatively much less reactive. Paraffins का मतलब ही होता है less reactive. सर आपने ऊपर वो स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन किसके लिए लिखा था? अल्केन्स ओपन चेन के लिए. अनसैचुरेटेड वाले में भी ओपन चेन जो रहेगा उसके अंदर वी आर गोइंग टू हैव दिस थिंग स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन. ठीक है. हाँ. It has tetrahedral geometry at each carbon center. For straight chain members, 1 carbon to 4 carbon are gases at room temperature, 5 to 17 are liquid at room temperature, greater than 18 are solids at room temperature. In general, alkenes are colorless and odorless gas or odorless. They don't have color, they don't possess odor. Ethyl mercaptan or ethyl thiol is used with LPG or CNG cylinders to impart them smell. Is that okay? Ethyl mercaptan LPG या CNG सिलेंडर्स के अंदर हम इथाइल मरकैप्टेन को स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करते हैं जिसकी वजह से वो बहुत पंजेंट स्मेल जो आता है which indicates to us कि गैस लीकेज हो रही है. That is because of ethyl mercaptan. वो तो एक्चुअली सीएनजी और उनमें स्मेल नहीं होता. हाँ, एक्चुअली में उनमें स्मेल नहीं होती है because they are हाइड्रोकार्बन अल्कीन. ठीक है. और मोस्टली सीएनजी जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन मेनली. और एलपीजी जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज फ्रॉम ब्यूटेन टू दैट इज प्राइमरली ब्यूटेन. ठीक है. विथ
सम मीथेन, इथेन, प्रोपेन और हेक्सेन तक भी रहता है, हेक्सेन तक की चीजें रहती हैं उसमें थोड़ी थोड़ी। बट ब्यूटेन मेजर कंट्रीब्यूटर होता है एलपीजी का, और सीएनजी में मीथेन और इथेन, मीथेन इज द मेजर कंट्रीब्यूटर। ओके, यस। next one, electronegativity of carbon and hydrogen are respectively when hence at bond level carbon hydrogen bond has very less polarity, and the same goes for molecular level as well. They are going to have least polarity, and this makes them a low boiling point materials, as they are held by weak van der Waals forces. Apart from van der Waals force, there is no other force. डाइपोल डाइपोल जो है वो बहुत ही वीक इंटरेक्शन रहेगा इनका। द ओनली वैलिड और the only major attractive force is weak van der Waals forces, nothing more than that. Now van der Waals forces का ऐसा होता है कि they are directly proportional to the surface area. Greater the surface area, greater will be the van der Waals force, and greater the force, higher will be the boiling point. सरफेस एरिया जो है ब्रांचिंग के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा स्फेरिकल शेप आपका उतना ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व होने लगेगी। किसी भी चीज में अगर ज्यादा ब्रांच हो जाएंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे स्फेरिकल होने लगता है, और अदरवाइज वो स्ट्रेट लंबा रहेगा। किसी भी गिवन सॉलिड का मिनिमम वॉल्यूम जो होता है, सॉरी, सेम सॉलिड का मिनिमम सरफेस एरिया दैट हैपेंस इन केस ऑफ स्फीयर, ठीक है। सेम वॉल्यूम की अगर हम चीजें लेते हैं, सेम वॉल्यूम की, देन मिनिमम सरफेस एरिया जो रहता है वो हमेशा स्फीयर का रहता है, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो इसके हिसाब से जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी सरफेस एरिया हमारा उतना कम हो जाएगा, वैन डर वाल फोर्सेस कम हो जाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा, दूसरा चीज जो होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, दैट मींस इनडायरेक्टली वो मॉलिक्यूलर वेट पर या मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंडेंट हो जाएगा। मास ज्यादा तो वैन डर वाल फोर्सेस ज्यादा रहेंगे, मास कम तो वैन डर वाल फोर्सेस कम रहेंगे। Melting point in general increases with molecular mass. It follows the similar trend as boiling point. Branching के साथ decrease करेगा, so pattern remains the same as boiling point with a little bit of exception in the first three members. आगे चीजें normal है, but first three members में there is some deviation. The deviation is प्रोपेन का सबसे नॉर्मल, प्रोपेन का सबसे कम है मेल्टिंग पॉइंट, फॉलोड बाय मीथेन, फॉलोड बाय इथेन। तो अमंग दीज थ्री इसको सबसे आगे रहना चाहिए था, बट ये अनफॉर्चुनेटली सबसे पीछे आ गया। रीजंस हैवंट एक्सप्लोर्ड। सर क्या बोला रीजन? रीजन मैंने नहीं पता किया, ठीक है, मैंने ढूंढा नहीं, क्योंकि तो ये याद रखने की चीज है। हाँ, ये छोटी सी चीज है, याद रख सकते हो, मिस भी हो जाएगा तो कुछ बहुत बड़ा उछाल नहीं है। टेम्परेचर नहीं ना, खाली वो ऑर्डर ही आ सकता है ना। क्या क्या? खाली ऑर्डर ही आ सकता है ना, टेम्परेचर नहीं। टेम्परेचर नहीं, ऑर्डर याद रह गया बहुत है। ये की पॉइंट है, ये ध्यान में रहना चाहिए। डेंसिटी इंक्रीजेस विथ मॉलिक्यूलर मास फॉर अल्केन्स,
but it saturates at 0.86 gram per cc, which is lesser than density of water. So alkane कोई भी लेंगे, solid, liquid, gas, किसी को भी उठाएंगे, they all are going to have density lesser than water. So if we are going to put the solid alkanes even in water, they are never going to sink. They are going to swim. Is that okay? Or float? Clear here? हाँ, वो बढ़ेगा तो भी ज्यादा नहीं कि वाटर जितना नहीं बढ़ता है। हाँ, वाटर के नीचे ही रहेगा। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है, ये तीनों ही वाटर के नीचे रहेंगे। बेंजीन भी रहता है, प्लस अल्काइल हैलाइड जो होता है वो भी काफी हद तक नीचे ही रहता है। काफी हद तक नहीं, उसमें ब्रोमाइड और आयोडाइड जब आते हैं ना तो इट बिकम्स हायर, बट फ्लोराइड वगैरह तक इट इज लेसर इन डेंसिटी देन वाटर. So that is something which we have to keep in mind. Okay, they can show structural isomerism. The only isomerism they can show is chain isomerism. Structural में chain isomerism, हाँ, अगर chiral centers बन रहे हैं किसी रीजन से, ब्रांचिंग वगैरह होने की वजह से, तो you may have stereoisomers as well. ठीक है, they show structural isomerism and may show stereo isomerism if हाँ, अगर एक कार्बन के अलग अलग वो ये होंगे, chirality exists. क्या बोल रहे हो? एक कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन है, साइड में मिथाइल है, दूसरे साइड में इथाइल है, तीसरे साइड में मिथाइल है, प्रोपाइल है, वही है। ठीक है। तो अगर प्रॉपर ऐसा कोई कंडीशन आ रहा है जहां पर कैरिलिटी है तो इट मे शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म. इन जनरल इट हैज टेंडेंसी टू शो चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल में सिर्फ चेन शो करेगा, स्टीरियो शो कर सकता है. Typical bond length, carbon-carbon bond length is 1.54 angstrom. Single bond length 80 to 88 kilocalorie per mole. Carbon-hydrogen bond length 1.1 angstrom या 1.09 angstrom. Energy is generally in between 98 to 104 kilocalorie per mole. Hydrogen-hydrogen bond length typically is 0.74 angstrom. The energy is 104 kilocalorie per. ठीक है, is that okay? Yes sir. Next one, the rotational barrier. Rotational barrier increases with increase in the bulk. ठीक है, CH3 के केस में the rotational barrier is 3 kilocalorie. Propane के केस में the rotational barrier is 3.3. Butane के केस में the barrier is around 4.4 to 6.1 kilocalorie. Anti-conformation is always more stable than Gauss by around 3 kilocalorie or more. Conformation में dihedral angle, ठीक है, Newman projection, right? सर ये न्यूमैन और वो कंफर्मेशन एक बार करो ना रिवाइज, कौन सा? कंफर्मेशंस और
न्यूमैन। ओके, न्यूमैन प्रोजेक्शन हम लोग कर लेते हैं। सपोज मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, कार्बन, दो बॉन्ड तो प्लेन में रहेंगे, दो बॉन्ड्स को हम हमेशा प्लेन में रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होती है, ठीक है। तो एक तरफ हम रख लेते हैं हाइड्रोजन को, दूसरे तरफ रख लेते हैं मिथाइल को, और दो को प्लेन में रखा मैंने, तो एक जो है वो हमारी तरफ आ सकता है, ऐसे ओरिएंटेशन में रख रहे हैं कि हमारी तरफ आ जाए, और दूसरा जो है वो हमसे दूर जाए, ठीक है। यहाँ पे मे बी हम इथाइल CH एंड CH3 ये डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम मे बी प्रोपाइल डाल लेते हैं, C3H8। क्लियर है? अच्छा, ये सोच के ही बना रहा हूं मैं, तो आई जस्ट क्लैरिफाई। ये कार्बन से बाहर आता हुआ एक बॉन्ड है, जिस पर अगेन ये कार्बन अटैच्ड है, इथाइल का कार्बन। इसके दो बॉन्ड, दोनों हाइड्रोजन को मैंने प्लेन में रख लिया है, तो CH3 जो होगा वो ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ जाएगा। सो वो पीछे कैसे है वो हाँ, नहीं। CH3 वाला बॉन्ड कहाँ पे, वो नहीं समझ। CH3 वाला बॉन्ड पीछे की तरफ जाएगा ना। सर मैं कुछ ड्रॉ करूँ क्या? क्या? सर जैसे ये पार्ट है वो हाँ हमारी तरफ है, मतलब ये ऐसे इस साइड सी है वैसे ना, एंड H यहाँ पे है, हाँ, और फिर ये CH3 है वो ऐसे ऊपर की तरफ है, या क्या? नहीं नहीं, ऊपर की तरफ नहीं है, ये इनटू द प्लेन जा रहा है। ये हमेशा पीछे की तरफ इनटू द प्लेन जाने वाला बॉन्ड होता है। इनटू द प्लेन, अच्छा पीछे काइंड ऑफ, हाँ हाँ समझ। एक मिनट रुक जाओ, तो मैं थोड़ा सा, मैं खुद भी सोच रहा हूँ, एक मिनट सिर्फ तो।
और देखो इसमें एक सिर्फ रिमाइंडर में डाल दो, ये वाला जो प्लेन है, ठीक है, plane constituted by this and plane constituted by these three atoms, ठीक है, they are not the same planes, ठीक है, these planes may be parallel planes but they are not the same plane. Getting the point? सर तो C3H8 और CH3 तो सेम ही लाइन में आएंगे। नहीं नहीं, वो दोनों अलग अलग प्लेन्स में है फिलहाल। वेट, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। क्या? Just 1 minute.